بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، 72 نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن پروگرام پہ عامر احمد اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے جہاں مسلمانوں کو، انسانوں کو بے شمار نعمتیں، بے شمار فضیلتیں، بے شمار انعامات، بے شمار برکتیں میسر آئیں، وہاں پر بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس نعمت کو اپنے اندر پا کر تمام مسلمان، تمام انسان آپس میں محبت، پیار، اخوت، رواداری، برداشت، صبر اور تمام اخلاق حسنہ اپنی طبیعت کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کے اندر انسان اپنے اخلاق کو بھی سنوار سکتا ہے، اپنی عادات و اطوار کو بھی سنوار سکتا ہے، اور پھر حقیقت میں اللہ کا بندہ کس طریقے سے بننا چاہیے وہ سارے کے سارے طریقے اور معاملات انسان مکمل طور پر اس ماہ مقدس کے اندر سیکھ سکتا ہے۔ معزز ناظرین، نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کا بندہ اس ماہ مقدس میں اپنے اخلاق سنوارتا ہے، یعنی اپنی دل کی دنیا کو آباد کر سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر بندہ مومن جہاں اپنی عبادات کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہاں اپنے معاملات کو بھی درست کر سکتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ اپنی اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات اور اپنی اسلامی تاریخ کو مکمل طور پر یاد کر سکتا ہے، اور ان کو یاد کر کے آنے والی نسل تک ان واقعات کو پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کے لیے سب سے محبوب ترین ذات وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی ذات اور نہیں ہے، ہاں فقط ایک ذات ہے، اور وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے مقربین آئے، جتنے صدیقین آئے، جتنے شہداء آئے، جتنے اولیاء آئے، ساری کائنات بھی مل جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کو لگی ہوئی دھول کے برابر نہیں ہو سکتی۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس ہمیں اس لیے بھی عطا کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے انعامات جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے درجہ محبوبیت کی وجہ سے نوازا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے نوازا ہے، ان سارے واقعات اور مقامات کو بھی جان کر اپنے دل کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گہوارہ بنایا جائے۔ یاد رکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر بندہ مومن کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اگر بندہ مومن کے دل میں آپ کی اتباع اور پیروی کی جھلک نہیں ہے، اگر بندہ مومن کا خلاق محمد مصطفیٰ جیسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندہ مومن کے معاملات زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جیسے نہیں ہیں، تو یاد رکھو اگر قلب میں، بندہ مومن کے قلب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دل کے اندر موجود نہیں ہے تو کسی صورت بندہ مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے، وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ساری زندگی عبادات کرتا رہے، حج ادا کرتا رہے، عمرے ادا کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، مجاہدہ کرتا رہے، زہد اختیار کر لے، تسبیحات کر لے، تحلیل کر لے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے، اپنے ظاہری وضاقتہ کو، جبہ اور قبہ کو اور اپنے ظاہری معاملات زندگی کو جتنا مرضی پارسا کر لے، اللہ کے نزدیک وہ بندہ کبھی ایمان والا کنسیڈر نہیں ہو سکتا
जब तक बंदा मोमिन के दिल में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके मुकाम से आशनाई नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हर रोज एक नए मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है, जिसको मुकाम महमूद कहते हैं। ये मुकाम महमूद क्या है, क्यों मिला, और इस मुकाम महमूद के जरिए हुजूर की गुनाहगार उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन किन इनामात से नवाजेगा, इस चीज को जानना और इस सारे मंजरनामे को समझ लेने के बाद अपने दिल के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा कर लेना, ये हम सब का लाजमी और ईमान का बुनियादी तकाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, और रात के पिछले पहर तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए, ये आपके लिए नाफिला यानी जायदा इबादत है। असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, ए मेरे हबीब मुकर्रम, जब आप रात के पिछले पहर उठकर कसरत के साथ तहज्जुद के नवाफिल अदा किया करेंगे ना, तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मकाम महमूद अता करेगा। अब ये मकाम महमूद क्या है? एक बात तो ये याद इस आयत करीमा से ये समझने वाली है कि देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर अमल के बदले में एक अजर रखा हुआ है। जैसे आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाता है। 10 आप इसी तरीके से आप दरूद सलाम पढ़ते हैं तो दरूद सलाम के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ कर देता है, 10 दर्जात बुलंद कर देता है। आप गिनते चले जाइए, नमाज आप पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में 27 गुना सवाब अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर अच्छे अमल का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक रखा हुआ है। अब हर नेक अमल का एक अजर है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक नेक अमल किया, और वो कौन सा किया कि आप रात को उठकर रात के पिछले पहर नमाज तहज्जुद अदा फरमाया करते थे। अब ये एक एक्शन हुआ, एक पॉजिटिव एक्शन हुआ, एक अल्लाह की कुर्ब का एक काम हुआ कि आपने नमाज तहज्जुद अदा की। जब नमाज तहज्जुद अदा कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे हबीब मुकर्रम, आपने रात के पिछले पहर उठकर नमाज तहज्जुद अदा की, नफल अदा किए, अब इसके बदले में मैं आपको मकाम महमूद अता करूंगा। सोचने वाली बात यह है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी में तस्बीह और तहलील भी की, रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार भी करते थे, फर्ज नमाजें भी पढ़ते थे, हज भी अदा किए, उम्रे भी अदा किए, तवाफ़े काबा भी किया, साई भी की, ज़कात सदकात और खैरात भी दिए। कोई आपके दरे पाक से खाली ना गया, गज़वात भी किए, जिहाद भी किए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग भी की। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की खातिर सौबतें भी बर्दाश्त की। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी भी हुए, रुखसार मुबारक जख्मी भी हुए, दांत मुबारक शहीद भी हुए। अलगरज कौन सी ऐसी मुसीबत होगी जिसका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना ना किया हो। आपने हिजरत और सफर की सौबतें भी बर्दाश्त की, कुफार और मुशरिकीन के ताने और तकलीफें भी बर्दाश्त की। ये सारी की सारी इबादत एक तरफ, और आपके वो नफल जो आपने तहज्जुद के वक्त अदा किए, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, बाकी सारी इबादतों का सिला तो जो मैं दूंगा वो दूंगा, बस आपके अजर का मुकाम और मर्तबा दुनिया वालों को समझाने के लिए ये बताना चाहता हूं कि मेरे हबीब मुकर्रम, आप जो रात को उठकर पिछले पहर में नवाफिल अदा करेंगे, उनके बदले में मैं आपको मुकाम महमूद अता कर दूंगा। मुसलमानों, मोमिनों, रमजानुल मुबारक के अंदर रोजा रखने वालों, ये बात सोचने की है कि आपके नफलों का सिला
तो मुकाम महमूद है, आपके फराइज का आलम क्या होगा, आपकी हिजरत के सवाब का आलम क्या होगा, आपके गज़वात के सवाब का आलम क्या होगा, आपके सफर और हजर के मुसीबतों को बर्दाश्त करने का अजर क्या होगा, आपके फराइज का अजर क्या होगा, हज का अजर क्या होगा, दौरा कुरान का अजर क्या होगा, एतिकाफ का अजर क्या होगा, दीन की तबलीग का अजर क्या होगा, उसके मुकाबले में बर्दाश्त की जाने वाली तकलीफों के बदले में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर को मुकाम अता करेगा उसका मुकाम क्या होगा। याद रखें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को किसी सूरत पैमाने के अंदर नापा और तोला नहीं जा सकता। और देखिए, आपके मुकाम की एक छोटी सी झलक ये है, छोटी सी झलक ये है कि आप जो पिछले पहर उठकर नवाफिल अदा करेंगे वो भी पिछले पहर के, आपने चाश के भी तो पढ़े, इशराक के भी तो पढ़े, अव्वाबीन के भी तो पढ़े, फराइज नमाजें भी अदा की, बाकी कुल मामलात किए वो अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ इस आयत करीमा में समझाया जा रहा है कि रसूल पाक ने जो पिछले पहर तहज्जुद के नफल अदा किए वो नफल, उनका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकाम महमूद की सूरत में अता फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब ये मुकाम महमूद क्या है, आइए इस तरफ चलते हैं। याद रखें, सहाबाए किराम ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये मुकाम महमूद क्या है, क्योंकि महमूद तो खुदा का नाम है। अब महमूद खुदा का नाम है और दूसरी तरफ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। अब हुजूर का अल्लाह का नाम महमूद और खुदा के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम महमूद। इससे एक मैसेज ये मिला कि जो कोई खुदा के नाम तक पहुंचना चाहता है वो पहले मुस्तफा के मुकाम को समझे और पहले अपना नाता, पहले अपना ताल्लुक, पहले अपना कल्बी रिश्ता, पहले अपना रूहानी रिश्ता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़े। जब मुस्तफा करीम से जुड़ जाएगा तो उसे खुदा के नाम की निस्बत मिल जाएगी। और अगर कोई सारी जिंदगी इबादत करता फिरे और दिल में मोहब्बत मुस्तफा नहीं है, दिल में निस्बत मुस्तफा नहीं है, दिल में मुकाम मुस्तफा की पहचान नहीं है, तो किसी सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। फरमाया ना कि खुदा का नाम महमूद और मुस्तफा का मुकाम महमूद। ये इसलिए है ताकि पहले हम मुस्तफा के मुकाम को समझें। जब मुस्तफा के मुकाम को समझ जाएंगे तो खुदा की इज्जत की कसम, खुदा खुद अपने बंदे पर और बंदा मोमिन पर करम और रहमतों की बारिश करता चला जाएगा। अब देखिए अगली बात जो यहां पर समझने वाली है, फरमाया असा यबासा का रब्बुका मकाम महमूदा। मेरे हबीबे मुकर्रम, हम आपको मकाम महमूद अता करेंगे। तो महमूद का माना होता है जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए उसे कहते हैं महमूद। जबकि हम कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं, सूरह फातिहा खोली, पहली सूरत देखी तो उसमें सूरह फातिहा में लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी की सारी तारीफें हैं अल्लाह के लिए। अब यहां पर बात समझने वाली है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज किया गया मुकाम महमूद क्या है, तो फरमाया महमूद का माना है जिसकी हम्द की जाए। जबकि कुरान मजीद के शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमा दिया कि सारी की सारी हम्द तो अल्लाह के लिए है। ये क्या माजरा है? तो अजीजान मोहतरम, सोचने वाली बात यह है कि सारी की सारी तारीफ, सारी की सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। तो जो तारीफ अल्लाह के लिए है वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद बखुद मुकाम बना दिया गया है। और दूसरी बात सोचने वाली ये है कि महमूद का माना है, यानी महमूद अल्लाह का नाम। अब अल्लाह के नाम का माना है जिसकी तारीफ की जाए। जबकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी पर जब गौर किया तो पता चला कि हुजूर का नाम तो है मुहम्मद, और मुहम्मद का माना है जिसकी बहुत तारीफ की जाए, बहुत तारीफ की जाए। ये क्या माजरा हुआ भाई? अल्लाह का नाम है महमूद जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है जिसकी बहुत तारीफ की जाए। भाई हम तो सारी जिंदगी ये सुनते आए हैं कि इस सारी कायनात में
درختوں کے پتے، زمین کے ذرے اور کائنات کی ساری مخلوقات، آسمان سے لے کر زمین کی تہوں تک جتنی کی جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری مخلوقات تو اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ تو پھر تو اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد، اور حضور کا نام ہونا چاہیے تھا محمود، کیونکہ زیادہ تعریف تو ہوتی ہے اللہ کی۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضور کا نام محمد رکھا جس کی بہت تعریف کی جائے، اور اپنا نام رکھا محمد جس کی تعریف کی جائے، اپنا نام رکھا محمود جس کی تعریف کی جائے؟ یعنی اپنا نام ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد مصطفیٰ کا نام ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرمایا میرے بندو پریشانی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری محبت کی بات ہے، سنو اور اس محبت کو سمجھ کر اپنے ایمان کے پیرامیٹر سیٹ کرو کہ ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے گرد گھومتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا محمد جس کی بہت تعریف کی جائے، اپنا نام رکھا جس کی تعریف کی جائے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ساری دنیا تو اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ معزز ناظرین، بڑی ایمان افروز بات اللہ رب العزت نے جواب دیا، میرے بندو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساری کی ساری مخلوقات میرا ذکر کرتی ہے، میری تعریف کرتی ہے، لیکن سنو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ساری کائنات مل کر میرا ذکر کرتی ہے، اور میں ہر وقت اپنے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہوں، ہم وقت محمد مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف کرتا ہوں، آپ کے مقام کو بلند کرتا رہتا ہوں، آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو اپنے قریب کرتا رہتا ہوں۔ معزز ناظرین، ساری مخلوق ساری کی ساری تعریف بھی کر لے تو وہ اس بندے کی تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی جس بندے کی تعریف خود خدا کر رہا ہو۔ اس لیے حضور کا نام محمد رکھا کہ محمد مصطفیٰ کی تعریف بہت تعریف اس لیے ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والی ذات خدا ہے، اور اللہ کی تعریف، اللہ کا نام محمود اس لیے ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والی مخلوقات ہیں۔ اب مخلوقات ساری مل کے بھی اللہ کی تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، اب یہاں سے وہ مقام سمجھیے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل عبادت کے بدلے میں اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، وہ ہے مقام محمود۔ تو پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ اس کی مختلف شکلیں اور جہتیں ہیں، ایک ایک کو سنتے آئیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے رسول اور کل امتیں قیامت کے روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہوں گی، تعریف کر رہی ہوں گی۔ فرمایا ساری مخلوقات محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہوں گی، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اور آگے چل کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اول سے آخر تک ساری مخلوقات ہی صرف اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی تعریف نہیں کر رہی ہوں گی، بلکہ خود خدا بھی۔ امام خازن فرماتے ہیں، تفسیر مدارک التنزیل میں بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اسی طریقے سے امام سیوطی نے تفسیر جلالین میں اس کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ صرف اول سے آخر تک سارے نبی اور رسول اور مخلوقات ہی حضور کی تعریف نہیں کر رہی ہوں گی، بلکہ قیامت والے دن خود خدا بھی محمد مصطفیٰ کی تعریف، محمد مصطفیٰ کی توصیف بیان کر رہا ہوگا۔ اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ساری کی ساری مخلوقات خدا سمیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوگا، اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ اللہ کس طریقے سے حضور کی حمد کر رہا ہوگا؟
اللہ کس طریقے سے تعریف کرے گا؟ کیا وہ یا محمد محمد کہہ رہا ہوگا، یا وہ حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہوگا، وہ حضور کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہوگا؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب مکرم، ہم قیامت کے دن آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلم شریف میں کتاب الایمان میں حدیث پاک آئی کہ اے میرے حبیب مکرم انا سنردیک فی امتک، قیامت کے دن ہماری تعریف کا عالم یہ ہوگا، ہم آپ کی تعریف اس طریقے سے کر رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو امت کے معاملے میں مکمل طور پر خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ امام خازن نے بھی یہی بات بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں سارے نبی اور رسول اللہ کے حبیب کی تعریف کر رہے ہوں گے، وہاں پر تعریف کا ایک عالم یہ بھی ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے معاملے میں اللہ راضی کر دے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے، کب راضی ہوں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار۔ تاجدار کائنات نے فرمایا میں اپنے مولا سے قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنا آخری امتی بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں نہ لے جاؤں۔ ذالک المقام المحمود، فرمایا دوزخ سے، دوزخ میں پڑے ہوئے امتیوں کو جنت میں لے کے جانا، اس پروسیس کو مقام محمود کہتے ہیں، مقام محمود کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اگلا معنی امام ابن نجار نے تاریخ المدینہ میں اس معنی کو بیان کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود کیا ہے۔ بیان کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو فرمایا قیامت کے دن 70,000 حوروں کے جھرمٹ، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کے ساتھ لے کر جایا جائے گا، تعظیم کے ساتھ لے کر جایا جائے گا۔ اب قبر انور سے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جنتی لباس پہنا کر، نور کا لباس پہنا کر، یوقرونہ، تعظیم اور توقیر کے ساتھ آپ کو میدان حشر میں لے کر جایا جانا، اس منظر کو مقام محمود کہتے ہیں۔ دیکھیے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف یوم یفر المرء من اخی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا ہے، ہر انسان اپنے ہی پسینے کے اندر شرابور پڑا ہے، ہر کوئی گناہوں کی فکر لیے مارا پھر رہا ہے، کوئی پل سرات پہ گر رہا ہے، کوئی میزان پہ لرزہ طاری کیے ہوئے ہے، کوئی کہیں پریشان ہے، کہیں کوئی نیکیوں کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، کہیں اپنے عیب چھپانے کے چکروں میں پھر رہا ہے، کہیں چیخو پکار ہے، آہو زاری ہے، ایک مارا ماری کا اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس سارے کے سارے انوائرمنٹ کے اندر محمد مصطفیٰ کو اس شان کے ساتھ لے کے جایا جانا کہ ساری کی ساری مخلوقات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اس سارے منظر نامے کو کہا یہ مقام محمود ہے۔ عزیزان محترم، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، الشفا شریف کی حدیث پاک قاضی عیاض نے بیان کیا، امام طبرانی بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ہر کوئی گر رہا ہوگا، ہر کوئی پریشان دکھائی دے گا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شان کے ساتھ لے کر جایا جائے گا کہ ہر کوئی رشک کر رہا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کا عرش لگا ہوا ہوگا، آپ کو لے کے کہاں جایا جائے گا؟ ادھر صدیقین بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے نوری ٹیلوں پر، قیامت کے دن یہ قیامت کا ایک جلسہ عام ہے، وہاں پر خدا کا عرش لگا ہوا ہے، ساری مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میدان حشر میں موجود ہے، میدان حشر میں موجود ہے۔ ادھر ٹیلوں پر اولیاء بیٹھے ہیں، صلحاء بیٹھے ہیں،
सूफिया बैठे हैं, उशाकान खुदा, उशाकान मुस्तफ़ा बैठे हैं, हर तरफ नूर के मिंबरों पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे में हर कोई मुंतजिर दिखाई देगा कि आका अलैहिस्सलाम कहां बैठेंगे। आपको 70,000 हूरों के झुरमट में लेके जाया जाएगा, तो आका अलैहिस्सलाम कहां बैठेंगे। सियासित्ता में हदीस पाक है, आप फरमाया आका की सवारी किसी मिंबर के पास नहीं रुकेगी, अचानक हुक्म होगा कि अल्लाह के अर्श पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी रखी जाए। अचानक हुक्म होगा कि अर्श पर अल्लाह की कुर्सी रखी जाए। और साथ फरमाया जाएगा जब अल्लाह की कुर्सी रख दी जाएगी तो फरमाया जाएगा इसके साथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी रखी जाए। अब ये अल्लाह की कुर्सी के साथ कयामत के दिन खुदा के अर्श पर अल्लाह की कुर्सी के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी का रखा जाना, फरमाया ये मुकाम महमूद है, ये वो अजर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद के नफलों के बदले में अता फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिर्फ यही मुकाम महमूद नहीं है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अर्श पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिकबाल फरमाएंगे। अपनी शान के लायक जब इस्तिकबाल फरमा लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे मेरे महबूब इस साथ मेरी दाईं जानिब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अदब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्सी के साथ दाईं जानिब कुर्सी पर नहीं बैठूंगा बल्कि अदब से खड़ा रहूंगा। अब सारी की सारी मखलूकात मौजूद हैं, सारी मखलूकात मौजूद हैं। रिवायात में आता है कि सारी मखलूकात परेशानी के आलम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी। वो जाकर कहेंगी आप हमारे बाबा हैं, आप सारी मखलूक के पालने वाले और सबके वालिद हैं, हम आपकी औलाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए हिसाब जल्दी शुरू हो जाए। वो कहेंगे आवा गैर ज़ालिक, किसी और के पास जाइए, मैं आज मदद नहीं कर सकता। वो फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। 1,24,000 अंबिया और रसूल के पास सारी उम्मतें जाएंगी और जाकर अर्ज करेंगी आप अल्लाह के रसूल हैं, आज की इस परेशानी के आलम में आप हमारी मदद कीजिए, हिसाब जल्दी शुरू करवा दीजिए। वो कहेंगे आवा गैर ज़ालिक, आवा गैर ज़ालिक, आवा गैर ज़ालिक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर सारी उम्मतों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेज देंगे। ताजदार कायनात के पास जब सारे पहुंचेंगे तो ताजदार कायनात फरमाएंगे हाँ आना लहा, हाँ मैं ही तुम्हारे लिए हूं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करेंगे बारी ताला मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी शुरू कर दे। आप देखिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आई सबसे बाद में, लेकिन जब हिसाब शुरू करवाने का मामला आएगा ना तो ताजदार कायनात की उम्मत का हिसाब सबसे पहले होगा। और आपकी कहने पर हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब सिलसिला शुरू होगा तो इस सिलसिला के शुरू होने को कहा गया ये हुजूर का मुकाम महमूद है। फिर बात यही नहीं रुकी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मीजान पे खड़े हो जाएंगे, मीजान पे खड़े हो जाएंगे। आपकी वजह से हिसाब शुरू हो गया। अब जो लोग नेक अमाल की वजह से, तस्बीह और तहलील की वजह से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम की वजह से, रोजे रखने की वजह से और अल्लाह के फजल और इनामात के बायस जन्नत में अपने नेक अमाल की वजह से जाते जाएंगे, वो तो जाते जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें फरमाएंगे कि इनको दोजख में भेज दिया जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको दोजख के परवाने मिल चुके होंगे उनकी सिफारिश ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में करेंगे। और जब आप सिफारिश करते जाएंगे
अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको माफ करता चला जाएगा। और हदीस में आया कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनको परवाने मिल चुके होंगे, जिनके लिए ऐलान हो चुका होगा कि जाओ तुम दोजख में चले जाओ, तो फरमाया उनसे परवाने लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला ये मेरी उम्मत के गुनाहगार लोग हैं, इनको तू माफ कर दे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी की बात करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त उन्हें माफ करते चले जाएंगे। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बख्शिश करवाएंगे, इतनी बख्शिश करवाएंगे कि दोज़ख का फरिश्ता कहेगा, दोज़ख का फरिश्ता अल्लाह ताजदार कायनात की बारगाह में अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह आपने सबकी बख्शिश करवा ली, आपने तो अल्लाह के गजब के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, अल्लाह के गजब के लिए कुछ नहीं छोड़ा। इस सारे मुकाम को और इस सारे इख्तियार को फरमाया ये मुकाम महमूद है। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबको जन्नत में भेज चुकेंगे, जन्नत में भेज चुकेंगे, अब वो सारे के सारे आगे जाकर मीजान से आगे जाकर जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब का अमल मुकम्मल करवा के अपनी सवारी पे बैठकर, जिसकी मुहार हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पकड़ी हुई होगी, आप जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो वहां पर देखेंगे कि सारी लोग, सारी उम्मत के वो लोग जिनको जन्नत के परवाने दे दिए थे, वो सारे के सारे जन्नत के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। आप पूछेंगे कि आप जन्नत में क्यों नहीं जाते, वो कहें अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा नॉक करेंगे। ये कुल अहादीस हैं जिनको आइम्मा हदीस ने बयान किया, सियासिता ने बयान किया, और दीगर आइम्मा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इन बातों को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, बयान किया। फरमाया जन्नत का दरवाजा नॉक होगा, अंदर से आवाज आएगी, कौन? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। जैसे ही जन्नत का बवाब आपका नाम सुनेगा तो फरमाया आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जब आप सबसे पहले जन्नत में कदम रखेंगे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक आई, इमाम दारमी शरीफ में इस हदीस पाक को रिवायत किया। आप फरमाते हैं, फरमाएंगे फाकुल मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, फयुफ्ताहुली, बस वो दरवाजा मेरे लिए खोल दिया जाएगा। जैसे ही मैं अपनी सवारी पर मैं जन्नत के अंदर कदम रखूंगा, फयस्तकबिलुनी अल जब्बारु तआला, तो सामने खुद खुदा मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा होगा। पर फरमाया जालिकल मुकामल महमूद, खुदा का खुद अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा का जन्नत में इस्तकबाल करना, इसे मुकाम महमूद कहते हैं। फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुकाम अता कर दिया गया। फिर इमाम अबू बकर अल आजूरी ने पूछा, उन्होंने हजरत इमाम मुजाहिद से रिवायत किया कि मुकाम महमूद क्या है, तो वो बयान करते हैं कि मुकाम महमूद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुर्सी के साथ अर्श पर मुस्तफा करीम की कुर्सी रखेगा, लेकिन मुस्तफा करीम अदब की वजह से साथ नहीं बैठेंगे। फिर इसी चीज को अब दिगर आइम्मा ने बयान करते हुए फरमाया कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में चले जाएंगे तो आप सजदा रेज हो जाएंगे, सजदा रेज हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे, ए मेरे हबीब मुकर्रम, आप सजदे में गिरकर रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, जिनको मीजान के मुकाम पर, जिनको दोज़ख के परवाने मिल चुके थे, जो मेरी शफाअत से जन्नत में आ गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनके अमाल इस कदर कमजोर थे कि वो शफाअत के जरिए भी जन्नत में नहीं आ सके। मेरी ये ख्वाहिश है कि वो दोज़ख में पड़े हैं मगर मेरे उम्मती हैं, मैं चाहता हूं उन्हें भी तो दोज़ख से निकाल के जन्नत में भेज दे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, ए मेरे हबीब मुकर्रम, जाओ दोज़ख में 70,000 लोगों को जो दोज़ख में पड़े हैं, और फिर उनमें से हर एक के साथ 70,000 लोगों को दोज़ख में जाइए और वहां से दोज़ख के बवाब को कहिए,
बवाब के जरिए उन्हें निकाल कर आप जन्नत में ले आए। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों लेने के लिए जाएं? अल्लाह खुद भी तो उन्हें निकाल के इधर ला सकता था ना। यहां पर बड़ी ईमान और मोहब्बत की बात यह है कि ताजदार कायनात खुद दोज़ख से इसलिए लेने जाएंगे कि कहीं के वो लोग जो दोज़ख से निकलकर जन्नत में आ जाएंगे ना, जब वो आ जाएंगे तो वह ऐन मुमकिन है वो ये समझें कि हम अल्लाह के फजल की वजह से आ गए, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो गया इस वजह से आ गए। कोई ये सोच रहे होंगे कि शायद हमारी सजा मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई, इसलिए हम आ गए जन्नत में। नहीं, जब ताजदार कायनात को भेजा तो हर एक के जहन में ये बात रहे कि आप अपने किसी अमल की वजह से नहीं आए, आप खुदा के गजब के ठंडे होने की वजह से नहीं आए, अपने सजाओं की मुद्दत पूरी होने के बायस दोज़ख से निकलकर जन्नत में नहीं आए, बल्कि आप तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम, आपकी मोहब्बत और उम्मत के साथ आपके प्यार की वजह से दोज़ख से निकलकर जन्नत में आए हैं। किसी ने क्या खूब कहा था ना कि फकत यही मकसद है इनेकाते बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुकाम महमूद इसलिए अता किया कि आपके मुकाम महमूद की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारी कायनात जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी कायनात बनाई थी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से बनाई थी। महशर का दिन सजाया तो फकत इसलिए सजाया कि उस दिन हुजूर के उम्मती और सारे अंबिया और रसूल और उम्मतें जान लें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को कितना प्यार है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इख्तिताम की तरफ आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन लोगों को जन्नत में ले आएंगे तो ताजदार कायनात फिर सजदे में पड़ जाएंगे, फिर ज़ारो कतार रोएंगे। ताजदार कायनात से अल्लाह पूछेगा, ए मेरे हबीब मुकर्रम आप क्यों रो रहे हैं, अब क्या बात है? ताजदार कायनात ने फरमाएंगे, बारी ताला अब भी कई कमजोर ईमान वाले गुनाहगार अब भी दोज़ख में पड़े हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाएंगे, मेरे हबीब मुकर्रम जाइए, जिसने जिंदगी में जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है, राई के बराबर भी, गंदुम के दाने जितना भी ईमान है, आप उसे भी दोज़ख से जाके जन्नत में ले आइए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाएंगे और उन दोज़ख में पड़े हुए लोगों को जन्नत में ले आएंगे। ताजदार कायनात जब पहुंचेंगे फिर सजदे में पड़ जाएंगे, फिर ज़ारो कतार रोएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे, ए हबीब मुकर्रम अब क्या बात है? तब आप सवाल करते हैं कि कीजिए, आपको अता किया जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह अभी भी कुछ मौजूद हैं, मेरे उम्मती हैं, कमजोर ईमान वाले थे, गुनाहगार थे, मसाइब में घिरे रहे, तुझे मना न सके, अपनी कमजोर आमालियों के बायस दोज़ख में चले गए। बारी ताला मैं चाहता हूं वो भी जन्नत में आ जाएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, ए मेरे हबीब जाओ, जिसने जिंदगी में एक मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया था, जाइए उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले आइए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और जिसने जिंदगी में एक मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा ना, उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले आएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, देखिए हुजूर की मोहब्बत का आलम अपने उम्मतियों के साथ क्या है। फिर यही बात नहीं रुकेगी, कुछ दिन जन्नती वो सारे दोज़ख से आने वाले जन्नत में रह रहे होंगे, लेकिन उनके माथे पर जहन्नमीयून लिखा हुआ होगा, जहन्नमीयून लिखा हुआ होगा। जन्नती उनको देखकर पहचान लिया करेंगे कि ये वो लोग हैं जो पहले से जन्नत में नहीं आए, बल्कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए यहाँ जन्नत में आए हैं। तो उनके माथे पर लिखा हुआ होगा ना, तो वो थोड़ी सी शर्म फील करेंगे, एहसास कमतरी फील करेंगे। एक रोज वो सारे के सारे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला तूने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, आपकी शफाअत से, आपकी सिफारिश से हमें दोज़ख से निकाल के जन्नत में तो डाल दिया,
अब ये जो टाइटल हमारे माथे पे लिखा हुआ है, अपना फजल कर और अपने हबीब मुकर्रम के सदके ये भी हटा दे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि उन सारे लोगों को फिर आबे हयात में गुस्ल दिया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, और उनके चेहरों में भी वो नूर मुंतकिल कर दिया जाएगा जो पहले से रहने वाले जन्नतियों के माथों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता कर दिए हुए थे। और वो भी फिर जन्नतियों के साथ जन्नती यून हो जाएंगे, जहन्नमी यून नहीं रहेंगे। देखिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो मुकाम है, यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी कायनात हम्द कर रही होगी कयामत के दिन। इसे मुकाम महमूद कहते हैं। आपको 70,000 फरिश्तों के झुरमट में लेकर जाया जाएगा, इसे मुकाम महमूद कहते हैं। आपकी कुर्सी अल्लाह की कुर्सी के साथ रखी जाएगी, इसको मुकाम महमूद कहते हैं। आपकी हुक्म पर, आपकी सिफारिश पर, आपकी अर्ज गुजारी पर ताजदार कायनात की उम्मत का हिसाब जल्दी शुरू होगा, इसे मुकाम महमूद कहते हैं। आपकी सिफारिश से दोज़ख में जाने वाले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, इसे मुकाम महमूद कहते हैं। फिर जो दोज़ख में, फिर ताजदार कायनात जब जन्नत में जाएंगे तो खुदा खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा का इस्तकबाल करेगा, इसे मुकाम महमूद कहते हैं। जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा वो भी जन्नत में जाएगा हुजूर की सिफारिश से, इसे मुकाम महमूद कहते हैं। और जिसने जिंदगी में एक मर्तबा भी कलमा पढ़ा होगा तो वो भी अगर दोज़ख में पढ़ा होगा तो उसे ताजदार कायनात दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। ये हुजूर का मुकाम महमूद है। जहां पर हुजूर का मुकाम महमूद है वहां पर समझने और सोचने की बात यह है कि उस नफ्सा नफ्सी के आलम में भी ताजदार कायनात अपनी उम्मत को नहीं भूले, मगर हम हैं कि हम अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूले हुए हैं। रमजान अल मुबारक की घड़ियों में भी भूले हुए हैं। आप पर दुरूद व सलाम की कसरत नहीं, आपकी तालीमात पर अमल पैरा होना नहीं, आपकी मोहब्बत दिल के अंदर नहीं। हमारी जवानियां बर्बाद होती नजर आती हैं, हमारी जवानियां बर्बाद होती नजर आती हैं। हम हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल में गिरफ्तार दिखाई देते हैं। हम हुब्बे औलाद में परेशान और पामाल दिखाई देते हैं। हुब्बे शहवात में मारे मारे नजर आते हैं। कहीं माल की मोहब्बत, कहीं औलाद की मोहब्बत, कहीं ओहदा और मनसब की मोहब्बत, कहीं दुनिया की जाहिरी आसाइशात और सहूलियात की मोहब्बत, कहीं पैसे की मोहब्बत, कहीं किसी इंसान की मोहब्बत। हम मारे मारे फिरते हैं इन मोहब्बतों के पीछे। याद करो मुसलमानों, इस माह रमजान मुबारक के अंदर अगर हम इतना अहद कर लेते हैं कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही दुआ की, रब्बे हबली उम्मती, बारी ताला मुझे मेरी उम्मत अता फरमा दे। आप मेराज पे जाएं तो अर्ज करें बारी ताला मेरी उम्मत को माफ कर दे। जब तशरीफ लाएं दुनिया पर तो हुजूर ने अपनी उम्मत को याद रखा, अर्श पे जाएं तो अपनी उम्मत को याद रखा। कयामत का दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने लगे थे तो तब भी जाहिरन जाते हुए भी उम्मत के लिए दुआ करके गए। हर रोज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए 2 नफल भी पढ़ा करते थे और दुआ किया करते थे, बारी ताला मेरी उम्मत को बख्श दे। कयामत का दिन आएगा तो एक एक लम्हे ताजदार कायनात अपनी उम्मत को नहीं भूलेंगे, मगर हम हैं कि हमारी जिंदगियां, हमारी जवानियां, हमारे शब रोज मोहब्बत मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा और मुकाम मुस्तफ़ा को जाने बगैर गुजरती चली जा रही हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रखिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा आ जाए तो ये सारी कायनात उसी इंसान की हो जाती है। किसी ने क्या खूब कहा था ना, दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और हैं सारी अजमतें सब रिफअतें इस नाम के सदके, हैं सारी अजमतें सब रिफअतें इस नाम के सदके, खुदा से जा मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से और आपके नाम से अगर हम जुड़ गए तो दुनिया भी रोशन,
आखिरत भी रोशन और ईमान भी अपने नुक्ता कमाल को पहुंच जाएगा। सोचने की जरूरत सिर्फ ये है कि मुस्तफ़ा करीम नहीं भूले, हमें भी भूलना नहीं है, बल्कि अपने दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा को उजागर करना है। और यही मोहब्बत मुस्तफ़ा दुनिया में कामयाबी की जमानत है, कब्र में कामयाबी की जमानत है और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। वो किसी ने क्या खूब कहा था ना कि इश्क सरकार की एक शमा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शमा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।